Hare. So we are in the midst of the 6th chapter, and this was the verse number we were discussing. 6.5. So what was 6.5? उदारेति आत्मा आत्मानं न आत्मानं अवसाद्यते आत्मा एव हि आत्मनो बंधुर आत्मा एव हि रिपु आत्मनः. So what did we discuss in that shloka? हम लोग ने क्या डिस्कस किया उसमें? One should use his mind to Uplift himself and not degrade himself. What else? And they also This mind is your best friend and your best enemy also, and that is what is Lord going to say in the next verse. So please take out chapter 6, verse number 6. Yes, please read the words translation. For him who has conquered the mind is the best friend. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. So for one who has conquered the mind, जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा फ्रेंड है, दोस्त है. How is it? माइंड तो हमको इतना अच्छा एडवाइस देता है. सुबह उठते ही जब अलार्म बजता है, पहला अलार्म बजते ही हमारा माइंड क्या बोलता है? प्रेस द स्नूज. यू आर स्लेप्ट लेट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. आपको अपना तबीयत संभालना है, प्लीज प्रेस स्नूज. तो हम लोग स्नूज दबा रहे और फिर होल डे वी आर रनिंग. Because we are late, we got up late, we end up late. So for him who has conquered his mind, the mind is his best friend. But we are always conquered by the mind. We never conquer the mind because हम we are all, इसके लिए ना किसी ने बोला है ना कि हम बंदर से आए हैं. क्यों? मन का करने वाला वही हम लोग कर रहे हैं. डोंट आवर बिहेवियर एंड मंकी का बिहेवियर में कोई फर्क नहीं. एवरी डे मॉर्निंग समवन गेट्स अप, व्हाट इज हिज थॉट? आज क्या करूं? बंदर भी यही सोचता है, एक पेड़ पे बैठ के मैं क्या करूं, दूसरे पेड़ पे कूदता है, विदाउट एनी लॉजिक और एनी रीजनिंग. सिमिलरली वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. वी आर बिजी ट्राइंग टू फाइंड सम वे ऑफ हैप्पीनेस, एंड दैट इज व्हाई unless until you don't arrest the mind, conquering means what does the word conquering mean? Conquering का मतलब क्या है? If a country conquers another country means it is by force. Automatically वो country आके surrender नहीं होने वाला है. You have to bombard the country, fight so much that finally the country has to be suppressed. Similarly, you will have to also suppress your mind. Mind is obstinate. Already it is going to come further. Lord will say, चंचलमी मन कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़म, ये सब आएगा आगे. अर्जुन बोलेगा ये मन को कैसे कंट्रोल करो. That is secondary. But first and foremost, please understand, for him who has conquered the mind is his best friend, and one who has not conquered his mind, for him he is the worst enemy. एक याद रखना, एक डॉन का मन और एक साधु का मन कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही मन. भगवान ने एक ही स्टॉक में से दिया. मन को कैसे वो नियंत्रण करता है और कैसे ये मन को नियंत्रण न कर पाने की वजह से ही इज डूइंग ऑल रॉन्ग एक्टिविटीज और डर्टी एक्टिविटीज. Whereas one who conquers the mind, you mean to say no bad or wicked ideas don't come in the mind of good people? When they get all these type of dirty and bad ideas, but what do? They conquer it, they suppress it, and उसको दबा के रखते हैं. ताकि why? Because earlier word Lord has already said उदारेति. आपको मन से उठना है, मन से गिरना नहीं. मन से गिरना आसान है, मन से उठना
मुश्किल है, और मन को जीतना बोला तो एक ही तरीका है, एंड दैट इज बाय conquering it. Please read the next verse also. For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. Everything is somewhere or the other related to the mind only. For one who has conquered the mind, the super soul has already reached. Has already reached. He has already achieved God. एक बार मन को कंट्रोल कर लिया means you have achieved God. भगवान को पाने का एक फॉर्मूला ये भी भगवान ने क्लियर कट भगवत गीता में दिया कि अगर आपको भगवान को पाना है तो आपको मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और मन को कंट्रोल किए बगैर इफ यू थिंक यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, you can never do in another 1000 births also. And the reason is why we are not able to conquer why we are so many births, millions and billions of births we have taken place, and formula देने के बाद भी हम लोग मन को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते? शायद इंटेलिजेंस एंड माइंड का डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं. We still have the propensity to enjoy. When there is no enjoyment in this world, you are still trying to enjoy. How can you enjoy? क्या enjoyment है? अगर खाने को अगर enjoyment समझते हो, 1 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी, 4 आइसक्रीम, 4 रसगुल्ला, इसके बाद और बस जो किसी को अगर रसगुल्ला खाया और उसको लूज मोशन हुआ ना, अगले बार उसको रसगुल्ला देखते बोलेगा नहीं बाबा, रिस्क ही नहीं चाहिए, लास्ट टाइम खाया था 4 दिन तक लूज मोशन हो रहा है ना. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं देयर इज नो एंजॉयमेंट दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट हम लोग बार बार उसी एंजॉयमेंट को खोद रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू गेट दैट एंजॉयमेंट. कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. So now, for one who has conquered the mind, super soul has already reached and attained tranquility. To such a man, happiness, distress, heat or cold, honor or dishonor, all the same. मिल गया फॉर्मूला, मिल गया. अब कैसे पाएं? अब कैसे पाएं? क्या आपके तो भगवत गीता सर मैं पॉकेट I got the answer, ना? So I have to. We all got the formula. So अब कैसे पाएं उस भगवान को, कैसे पाएं ना, या उस मन को कैसे कंट्रोल करें ताकि भगवान मिल जाए? कैसे करेंगे मन को कंट्रोल? कैसे करेंगे? ये बताइए, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? Putting a mind in devotional service. और devotional service में ऐसे बढ़ जाएगा. फिर वो जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है वो करना है. हाँ, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तीर्थ में नहाने का क्या फायदा है? अभी कुंभ मेला आने वाला है, कितने लोग जा रहे हैं कुंभ मेला में नहाने के लिए? नहीं, कोई नहीं जा रहा है. वेरी गुड, सब पुण्यवान लोग हैं यहाँ पे. हाँ, तो तीर्थ में जाके नहाते हैं, कुंभ मेला में जाके नहाएंगे या गंगा में जाके नहाते हैं, तो उससे क्या फायदा है? हाँ, टू प्यूरिफाई, मतलब पाप नष्ट हो जाएंगे. और जो पुण्य रह गया वो क्या, उसका क्या करोगे? पुण्य भोगने के लिए वापस जन्म तो लेना पड़ेगा ना. जब तक योर अकाउंट डजंट बिकम जीरो, यू कैन नॉट गो बैक टू. पुण्य है तो भी उसको एग्जॉस्ट करना है, पाप है तो भी एग्जॉस्ट करना है. चलो आप बहुत तीर्थ स्थान में गए, नहा के रगड़ के नहा के सब पाप धो दिया, जो पुण्य रहेगा उसका क्या? भोगना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा. और उससे अच्छा है अगर कोई भगवान का नाम लेता है. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग लॉर्ड्स नेम? पुण्य एंड पाप दोनों मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, दोनों चले जाते हैं.
The biggest benefit of taking the holy name is you are both punya and papa both are destroyed. That means now you are eligible to go back to. जब तक आपका पुण्य और पाप कुछ भी रह गया आप नहीं जा सकते। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, अगर आपका अकाउंट में 5 रुपया भी है तो भी आप अकाउंट बंद नहीं कर सकते। 5 क्या 2 रुपया 1 रुपया भी है तो भी आप बंद नहीं कर सकते हैं जब तक वो बैंक वाला बोलेगा या तो 1 रुपया लेके जाओ पहले, फिर मैं अकाउंट बंद करता हूं। और आपको अगर 500 रुपया भी बैंक को देना है बाकी है तो वो भी पहले आपको देना पड़ेगा, फिर ही आप अकाउंट बंद कर सकते हैं। तो इस भौतिक अकाउंट जो है हमने इस शरीर का अकाउंट जो खोला है उसको बंद कैसे करेंगे? ओनली आफ्टर डिस्ट्रॉइंग आवर। सो फर्स्ट एंड द ओनली मेथड इज टेकिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। इससे 2 फायदे हैं। परफेक्ट हमारा मन कितना कमीना है हमको कब पता चलता है? जब हम हाथ में माला लेते हैं। दुनिया भर का मन ऐसा भटक रहा है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एवरीवन एक्सपीरियंसेस, हाँ, माइंड इज जस्ट रोलिंग इधर से उधर। कब एंड द माइंड विल कम टू स्टेट, कब रखूं ये माला? हरे अरे कितना है माला, निकाल के दे, हाँ कितना बाकी, और 5 मिनट्स में 4 3 2 1 0 जैसा ब्लास्ट करने वाले हो। हाँ 4 माला हो गया, 4 ही हुआ, 16 भी नहीं हुआ, 4 माला हो गया। वाउंड अप, केप्ट इट इन द बैग, नाउ रिलैक्स, आई एम हैप्पी। बिकॉज वी आर लैकिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज faith. We don't have surrender. These are the components of controlling the mind. One has to surrender. One has to have faith on God, on the holy name. One has to have faith. We are not ready to surrender. By the way, how do you surrender? No, don't tell me. Show me hand. That's not the way you surrender. How do you surrender to God? Okay. Somebody may come with an answer, Prabhuji, only through a guru can. Yes, fine. But how? What is the formula for surrender? Has anyone know the formula of surrender? Cultivating faith. Yes. Take God's name. Take God's name. Okay, that's not the formula of surrender. That's the end prayojan, end way. Perfect, that's right. But something more better, something more additional. Yes, I want the seniors to answer this time. Yes, Jigar, how will you surrender? Only do what is favorable for Very good, perfect. Please take out, Google out all of you all. Anukulyasya sankalpa, pratikulyasya varjanam. Test type. Perfect, that is the perfect shloka of our surrender. अनुकूल से संकल्प मिला? शेयर करो ना फटाक से। एक वर्ड में ही आ गया। हाँ वो एक ही वर्ड में आ जाता। बस गूगल इज वेरी सरेंडर्ड, वी आर नॉट सरेंडर्ड। सो दिस इज देयर इन भक्ति विलास ऑल्सो, हरि भक्ति विलास ऑल्सो, एंड चैतन्य चरितामृत ऑल्सो, एंड लिंग पुराण में भी है ये। एंड दिस इज अ कॉमन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जब तक आप सीखोगे नहीं, सरेंडर होगा ही नहीं। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षतीति विश्वासो गोतृप्तेन वारण। आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। ये 6 तरीके हैं, 6 स्टेप्स हैं जिससे आप शरणागति कर सकते हो। यू कैन सरेंडर इन दिस 6 steps. Now let's discuss this in little detail. Very important. अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। जो भक्ति और आपके जीवन में उदारती जो बोला ना, जो ऊपर उठने के लिए, उसके लिए द बेस्ट जो जरूरी है वो आपको लेना है, और जो आपको भक्ति में ऊपर जाने से रोक रहा है उसको छोड़ना है।
You have to leave that. Which is good for your devotion, accept that. Now what is good for your devotion? Devotion भक्ति के लिए क्या अच्छा क्या? Confusion. Not even one thing is good for devotion. Yes, Prabhu. God. Okay, fine. That's the end prayojan. What about what is good for devotion? भक्ति करने के लिए क्या अच्छा है? साधु संग. हाँ, क्या बोले आप? सत्संग. फिर शांति, चैटिंग. ओके, जो आप नहीं करते हो सब बोल रहे हो. Yes, that is the first thing. No meat eating, no intoxication, no illicit sex and no gambling. ये 4 चीज से तो पहले छोड़ो. This comes under वर्जनम. छोड़ना है, ये आपको छोड़ना है. और अच्छा क्या है? सत्संग, भगवान का नाम लेना, मंदिर में आना, सत्संग में कथा सुनना, भगवान के बारे में सुनना. और भगवान के बारे में सुनने के बाद सत्संग का एक्चुअल फल क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल फ्रूट ऑफ डूइंग सत्संग? नो. No. Your desire for hearing more about katha, that is the actual fruit of satsang. Katha, listening to katha. जब आप सुनते हो, एक शराबी है. शराबी का मतलब क्या? सुबह शराब पी रहा है और ये सोच रहा है शाम को कब मिलेगा चांस मुझे पीने की. राइट? दैट्स हाउ अ ड्रंकर्ड इज. राइट? शाम को पी रहा है, कल सुबह 11 बजे पे पीऊंगा. नो, ही मेक्स ए शेड्यूल ऑफ drinking which is injurious for his health, costing him money, but still he is finding that chance. When I will get a chance to have my next liquor. How many of you all actually eagerly wait when will be next Saturday, when will be Sunday? मैं अगर किसी को पूछा ना 5-6 लेक्चर गायब होता, क्या रोज आप ही नहीं थे? क्योंकि जो आदमी जिसको इस चीज का लत रहता है ना, वो हफ्ते में भी YouTube में कहीं ना कहीं चैनल में, अपना मेरा चैनल या किसी और का चैनल में भी जाके कुछ ना कुछ सुनेगा. कुछ ना कुछ तो सुनेगा. उसके अंदर जब वो लाइक एक शराबी हो ना, लेट्स से उसका फेवरेट ब्रांड, एंड नॉट वेरी ब्रांड कॉन्शियस इन रेस्पेक्ट टू लिकर, आई डोंट नो, ने कभी जिंदगी में पिया नहीं है, बट लेट्स से रम पीता है. तो रम नहीं मिला तो कुछ और पिएगा, वो कोई और ब्रांड पिएगा, कुछ नहीं तो देसी ठर्रा पिएगा सब. उसी तरह है भक्ति में भी. आदमी ऐसा होना चाहिए कि भाई हाँ चलो, इफ आई एम नॉट गेटिंग सत्संग, एटलीस्ट आई विल सिट एंड चैंट, आई गो टू द टेंपल, आई सी द कीर्तन, आई डांस फॉर सम टाइम. रस में डूबा रहना चाहिए, तभी मन लगा रहेगा. नहीं तो मन, हाँ, आपका एसोसिएशन तो ऑलरेडी फैंटास्टिक. वी ऑल आर एसोसिएटेड वेरी नाइस सेंटली पीपल, नो. जैसे मिले नहीं, अरे क्या लेटेस्ट कपड़ा है, क्या लेटेस्ट ब्रांड है, क्या लेटेस्ट मूवी चल रहा है, क्या लेटेस्ट हो रहा है, उन लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे हो, एंड यू थिंक यू आर गोइंग टू बिकम बड़ा सत्संगी या बड़ा साधु. इम्पॉसिबल. यू आर विद रॉन्ग एसोसिएशन. बट क्या करें, वी कैनॉट लीव देम ऑल्सो. रहना इसी दुनिया में, छोड़ के तो जी नहीं सकते, बट उनको गले में पहन के तो मत चलो. ठीक है, माना उनके साथ रहना है, उनके साथ ही जीना है, बट उनको गले में पहन के जितना जरूरी है उतना रखो, बाप में दूर रखो. बिकॉज फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअलिटी. उनकी सारी आदतें भी ऐसे भी आपको नहीं चल रही है. बी ऑनेस्ट विथ यू. आर यू हैप्पी विथ योर एवरी फ्रेंड्स बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल? You can point out 100 mistakes in their lifestyle also, and they will find out 500 mistakes in you. And the biggest mistake is you go to temple, go to satsang every Sunday. That is a big blunder you do, according to them. कितने लोगों को सुनाते हैं? बोलते कि नहीं, घर में कहीं ना कहीं सुनाते नहीं. You are wasting your time, you are wasting your life. तो सत्संग का फायदा क्या है? The more you listen, more you will get desire to listen more.
Someone is there in the share market and he is earning money. He's earned money. X buck he has earned. शांति होती है? आज किस पे डालूं? आज क्या करूं? आज यहाँ क्या सट्टा लगाऊं? क्या मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? By the way, गैम्बलिंग को क्यों शास्त्र ने रोका है? By the way, any idea? हाँ? I mean, we have 4 regulative principles. हाँ, that's okay. But why does it come under the regulative principle? It's your money you're putting in speculative earning. That's the English word you give for gambling, right? हाँ, ठीक है. The consciousness will be focused on that rather than No. No. मृग तृष्णा, इसका मृग तृष्णा जो कि कभी संतुष्ट नहीं होती, No. और कमाना और No. Oh my God, what is the answer? Please remember, Lakshmi is the patni of Vishnu. नारायण की पत्नी है. किसी और को पत्नी पे आप दाव को नहीं लगा सकते. Acharya is very specific on that. You cannot. That's why we never say in ISKCON generally आप लक्ष्मी कभी लाए बोलेंगे. आपको कभी पैसे लाए कभी नहीं पूछे. क्यों? Lakshmi is the patni of Vishnu or Narayan, whatever you say, and she is as revered as Vishnu himself. So you have no right in putting Lakshmi. इसके लिए कई लोगों के पास धन होता है, पैसा होता है, बट लक्ष्मी नहीं होती. जहां लक्ष्मी होगी ना वहां शांति होगी. जहां धन होगा वहां भले आपके पास लाखों रुपए का चाय पीते रहोगे मगर हैप्पीनेस नहीं. सो स्ट्राइव फॉर लक्ष्मी, डोंट स्ट्राइव फॉर मनी, wealth. Wealth will come. That is by karmas. You don't have to go out of the way to get for karmas. But Lakshmi means you are having peace of mind. I know many rich people. They earn crores, but they have some family health issues where money is also going in crores. He says, I have no problem. I am earning 4 hands. No problem. But are you happy? Are you happy? Bottom line is, if you want happiness, you should have Lakshmi in your life and not wealth. Only wealth. That's why there's a nice old saying, some people are so poor. So poor that they have only wealth with them, nothing else. Wealth is important. You want to buy a Kantimala, you need money. It's not that Kantimala also comes for free. Even for devotion, you need money. You want to go to Dham, you need money. You need money for, by eating prasadam also. To offer food to the Lord also, you need money. Money is important. But that should be Lakshmi and not just wealth. So, Anukulya Sankalpa. Whatever is good, satsang is good, please do. Chanting the holy name is good, do. Pratipulasya varjanam. Whatever which is bad, first and foremost which is bad in your life is we are by default we have got an attraction towards meditating, intoxication, illicit sex and gambling. इन 4 चीजों के प्रति हमारा by default we have got an attraction. By default. कोई बोलने की जरूरत नहीं. और दे दो. तो by default we have got this attraction. किसी को तरीका अलग है, किसी का तरीका अलग है, बट है. मन उकसाएगा आपको ये चीजें करने. बोलेगा, मन बोलेगा इसी में तो आनंद है, जीवन का आनंद इसी में है. और आपको मन को समझाना है कि भाई जीवन का आनंद इसमें नहीं, क्योंकि जीवन का आनंद भले अगर आप इसको नानंद बोले या हम लोग का आनंद किसमें लगता है, मतलब द मैक्सिमम प्लेजर वी गेट in giving displeasure to others. If you are wearing a nice watch, it shows you the time, you are happy. No. You will be happy when your friend comes and sees your watch and says, wow, what a watch you are having.
वाओ व्हाट अ मोबाइल यू आर हैविंग, जल गई इसकी, अच्छा लगा, अब पैसा वसूल. So why are, you know, whole day what is our focus? What is the focus? Best dress, best car, best mobile, best. Why you want everything best, costliest, everything best? Why? ताकि दुनिया, दूसरा जो पड़ोसी है या आपका जो भी है सर्कल वाला, वो जले कि भाई आपका you are prospering. And the whole principle stands together even today. The whole principle. Neighbors envy, owners pride. है ना, पड़ोसी जब जलता है. And this is what we call as happiness, but that is not happiness, because this is the pivoted reflection of happiness in the material world. In the spiritual world, it is vice versa. That is why when you get initiated, you get the name, whatever name you get, in the end it is Das. And if it is a lady, it is Dasi. Once Prabhupada's one student, he came to Srila Prabhupada and he said, Prabhupada, आपने मेरा नाम जो दिया ना, दीक्षित नाम जो दिया ना, वो इतना अच्छा नहीं, इट इज नॉट वेरी नाइस. आपने उसको अच्छा नाम दिया, मेरे दूसरे दोस्तों को अच्छा नाम दिया, मगर मुझे अच्छा नाम नहीं दिया. Prabhupada said, see the word, last word, that is common for everyone and that is the most important. You are a das, you are a servant of the God. That is more important. If you become a good servant, the name automatically becomes big. Your name need not be big. Your name need not be very, attractive and charming and great. If your activities are good in front of God, then God Himself glorifies you. भगवान खुद आपको नेम फेम सब दे दे. So, अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम. So first, in प्रतिकूलस्य, giving up propensity for prohibited activities. Second, most important, giving up association with non-devotees. That is the most dangerous thing which we all are facing day in and day out. What is the problem? ठीक है, हम लोगों को नॉन डिवोटी या नॉन सत्संगी या कम से कम जो भगवान के प्रति जिसका कोई अट्रैक्शन नहीं है, उन लोगों के साथ हमको जीना है. नास्तिक लोगों के साथ हमको जीना पड़ता है, ठीक है, माना, बट कम से कम हो सके उतना उनका रंग अपने पे चढ़ने मत देना. डोंट अलाउ देयर इन्फ्लुएंस hitting your mind, rather hit your influence on them. That strong you should be. You know, it's always said, if you are going with a drunkard, even if you are not a drunkard, slowly that propensity, that desire will come inside you. Why not I also taste this and see? Why not I also do it? It should be vice versa. If you are with a drunkard, the drunkard should say, why not I skip today's morning liquor and come to the satsang? क्लास में क्यों ना जाऊं, मैं सत्संग करूं, आज मैं शराब छोड़ के जाऊं. That should be your prabhav, your influence on him. But we get influenced rather than influencing others. दूसरों पे प्रभाव डालने के बजाय हम लोग खुद प्रभावित हो. Then what is the next step? अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम. जो जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, छोड़ दो. रक्षति इति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इस पे विश्वास होना चाहिए. फेथ. I tell you a small story. एक बार आदमी नाव में जा रहा था, going in a boat with his wife, and suddenly there was a storm and the boat started tossing up and down, up and down. So everyone was in tension. वही टाइटैनिक वाला स्टोरी था, ऐसा सिचुएशन था, सब लोग भाग रहे, इधर उधर सब लोग भाग रहे. तो वो पति जो था ना, वो मस्त खराटे मार के सो रहा है. तो पत्नी को आया गुस्सा, पत्नी ने आके पति को झिंझोड़ा, गेट अप, यू आर स्लीपिंग, लुक एवरीवन इज रनिंग, लेट देम रन, आई वांट टू स्लीप. You don't understand, there's a big storm, the boat is about to going to sink, we are going to die, and you are not worried, आपको टेंशन नहीं है, नाव डूबने वाली है. तो ये बोला,
देख मेरे को सोने दे, डिस्टर्ब मत. She got wild. She started. Immediately, he took out the revolver from his pocket and put it in her head. And he said, she's saying, what happened? What are you doing? You're playing, you're having jokes. You are about to die and you're putting this revolver on my head. He said, tell me, are you afraid of this revolver or not? She said, no. मैं नहीं डरती हूँ. बोला, why? I know the one who is holding the revolver. I know him. He is my husband. He will not kill you. Immediately the husband said, don't worry. I know who is holding this storm. I know that person who is holding this storm. Storm जिसके इशारों में नाच रहा है, मैं जानता हूँ उस बंदे को, और वो किसी नहीं, कोई और नहीं, भगवान के हाथ में है. मैं भगवान को प्रे करूंगा, भगवान सेव करेंगे. सो रक्षति इति विश्वासो, विश्वास होना चाहिए, भगवान में विश्वास होना चाहिए. How many of you have heard the name of Maluk Peeth? Very famous. वृंदावन में मलुक पीठ है, मलुक दास जी हैं. तो मलुक दास जी का एक ट्रू स्टोरी. वो भी एक दिन ऐसे ही सत्संग में सब सुन रहा था, सब छोड़ो भजन करो. तो बोला, ओ ये सत्संग करने वाले सब है ना, ऐसे बोलते. हाँ, घर चलेगा क्या? सब छोड़ छाड़ के भजन करेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे तो घर चलेगा क्या? घर चलाना है, गाड़ी चलाना है तो पैसे तो लगते हैं ना. घर एक गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट इज मनी. विदाउट मनी गृहस्थ कैन नॉट सर्वाइव. तो he said, Maluk Das, he sold the person who was standing there on the dais, व्यासासन पे जो थे, उनको बोला, भाई आप बोलते हो सही है, मगर घर में दाल चावल रोटी आएगी तो कर्म तो करना पड़ेगा. तो कर्म प्रधान है, ना कि भक्ति प्रधान. इसने बोला, क्यों? अगर आपका विश्वास हो भगवान के ऊपर, if you have full faith, God will feed you. Immediately he challenged. He challenged. You are saying God will feed. चलो मैं कल सुबह जाता हूं, घर में भी नहीं बैठूंगा, जाके जंगल में बैठ के आप लोग जैसे मैं तपस्या जैसे आप लोग करते हो वैसे मैं जाके तपस्या करूंगा, भगवान का नाम लेते बैठ जाऊंगा. सीताराम 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 नाम, रामचंद्र जी का नाम लूंगा एंड देखता हूं कौन मुझे खाना खिलाता है. Who will feed me? Let me see. Immediately next day morning उसने घर छोड़ दिया, सीधा गया गांव के बाहर. जंगल था, घना जंगल था, घने जंगल में गया. जंगल में भी पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए, कोई देखेगा नहीं उसको, और वहां बैठ गए सीताराम सीताराम सीताराम. अब कौन खिलाएगा मुझे? आप किसी को खिलाओगे? पेड़ के ऊपर, कोई जंगल में पेड़ के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति को खिलाते? बट व्यास आसन पे जो महाराज बैठे थे उसने क्या बोला था? भगवान रामचंद्र जी पे भरोसा है, वो खिलाएंगे. थोड़ा देर बाद ऊपर बैठ के जब जरा था, नीचे देखा तो नीचे एक कबीला आया, यात्री जो ट्रैवल करते हैं ना, वो उस जमाने में ट्रैवलिंग लोग थे. तो आए, नीचे आए, बढ़िया सा खाना वाना बनाया वो लोग ने. they came, they reached over there, they made nice क्या बोलते हैं, दाल पकवान, then your rasgulla, mithai, all nice things they made. And they were a big group, around 20-30 people, so they made nice food. And जैसे उसने वो लोग ने खाना बनाया, देखा they were about to eat, इतने में उनको घोड़ों की आवाज सुनाई. They understood, डाकू are coming, डाकूस are coming. छोड़ो, leave everything, सब छोड़ो यहाँ पे, भागो, जान है तो जान है. हाँ, more important is to be alive. सब छोड़ के खाना बर्तन वैसे छोड़ के भागे. ये डाकू लोग पीछे पीछे है. देखा कोई नहीं है. तो सरदार के जो चेले चपाटे थे वो लोग बहुत खुश हो गए. दे वर वेरी हैप्पी. वाह, आज तो बहुत दिन के बाद बढ़िया खाना मिलेगा. तो जंगल में क्या, हम डाकू लोगों को क्या खाना मिलता है? तो बढ़िया खाना है, रसगुल्ला है, मालपुआ है, दाल पकवान है, अच्छी सब्जी है, आज तो जम के खाएंगे.
and they were about to sit to eat. The leader said, रुको, कौन है जो इतना अपने लिए खाना बना के जाएगा? राजा ने पहले ही हम पे इनाम रखा है. King has already given a huge award on us. Might be this is a plan to poison us and capture us. अपने को पकड़ने का प्लान रहेगा. ढूंढो किसका प्लान है ये. कितने में एक आदमी देखा ऊपर बैठा, सीताराम सीताराम सीताराम. एक तू उतर नीचे, तूने जहर मिलाया ना? मैंने कुछ नहीं किया, जहर नहीं मिलाया, कुछ नहीं मिलाया. नहीं, बैठ, हम लोग खाने के पहले तू खा के देख. अगर तू जिंदा रह गया तो हम लोग खाएंगे, और अगर तू मर गया तो हम लोग नहीं खाऊंगा. पीटा. कैसे नहीं खाएगा? ये चैलेंज गॉड ना. क्या मुझे देख, मैं जंगल में एक पेड़ के ऊपर जाके बैठूंगा, कौन आके खिलाएगा? मगर उसको नीचे उतारा, 2 झापड़ मारा, बोला खा, और वो भी थोड़ा नहीं, 100 आइटम ठूस ठूस के खिलाया उसको. देखा जिंदा है, फिर ये लोग खाने बैठे. उस दिन से वो भगवान का शरणागत हो गया. उसने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दिया. एंड he was none other than Maluk Das, and he became Maluk Das. He was Maluk Chand, because became Maluk Das, and finally he formed a पीठ. आज भी वो पीठ है, Maluk पीठ है वृंदावन. very big saint. They are basically रामचंद्र devotees. राम भगवान को ज्यादा मानते हैं. एंड डिड अ वेरी नाइस. आज भी बहुत विस्तार है उनका, बहुत अच्छे. सो कहने का मतलब भावार्थ क्या है? विश्वास, फेथ होना चाहिए कि भगवान करेंगे. हैव फेथ. प्रयास करो, प्रयास करो. मैं कहीं भी भगवान ने नहीं बोला प्रयास मत करो, बट ये प्रयास करते वक्त भी ये विश्वास रखो, भगवान जो मेरे लिए अच्छा है आप वो करो. भगवान से कभी भी गलती से भी थोड़ी भी भक्ति के लिए एवज में ये मत बोलना कि मुझे ये दे दे, या ये व्यक्ति दे दो, ये कर दो. Because that becomes encashing your devotion. Don't encash your devotion for something petty. Encash your devotion for something large. For you, might be 10 crores, 15 crores, maybe a large amount. But that is the time of death, you have to leave and go. You cannot carry it. So it is better you tell God, what is good for me, you do. What is bad for me, even if I feel that is good for me, don't do for. मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है आज मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, बड़ा गाड़ी. मालूम पड़ा वो गाड़ी दिया और उसमें एक्सीडेंट होकर मैं मर गया. उससे अच्छा है भगवान ने अगर कृपा किया है, गाड़ी न दे के आपको बड़ा कृपा किया है, गाड़ी दे के कृपा नहीं की. प्रतिकूल, अभी तू गिर गया. प्रतिकूलस्य वर्जनम अवश्य इति रक्षति इति विश्वासो. So one should always have 3 things. कौन सा 3? अभी 3 things कौन सा है? इंग्लिश में बोलो. Forget about the shloka. Tell me the meaning. Avoiding the association of non-devotees. First, take up things which are good for or ideal for devotion. Then give up things which are not ideal or not fit for devotion. Then Rakshati iti vishwaso, protection. Here I will always get protected. Third, go triptena varanaha. Always you should feel God is guiding you. Like a child feels safe in the hands of his parents. आप छोटा सा बच्चे को देखो, तो कई बच्चे को उठा के खेलते हैं ना, हवा में उड़ता है. उसको अगर पता चले कि माँ बाप छोड़ने वाले, वो हंसेगा. But the child laughs, cries, because he has 100% faith that the father or mother is going to catch. Similarly, you are actually in an unpleasant situation. In the air, when the child is being tossed up in the air, he is in a very
अनसर्टन पोजीशन। तो जीवन में भी हम लोग कई बार अनसर्टन पोजीशंस पे आ जाते हैं। अनसर्टन मतलब तकलीफ वाले पोजीशंस पे आ जाते हैं। क्या पता है आगे क्या होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं। तो कई बार हम लोग को फेंका जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम, इफ यू आर इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, यू आर अ डोल्ड्रम, रक्षतीति विश्वासो गो तृप्ते न वारणा, दिस टू गो हैंड इन हैंड। भगवान मुझे बचाएंगे, क्यों बचाएंगे? गो तृप्ते न वारणा, बिकॉज ही इज लाइक ए गार्डियन। यू नो मॉडर्न लैंग्वेज में नो गाइडिंग एंजल एंड ऑल दैट, आजकल मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से God is, there is no angel bigger than God, and God is always there to guide you. And one who has total faith on that, he doesn't need any supplementary things to support him. You don't need a bracelet, you don't need an armlet, you don't need this, you don't need that, you don't need anything. That rakshati iti vishvasu. Then only you surrendered, otherwise you are not surrendered. Then you, and जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे ना, भगवान आप पे कृपा नहीं करेंगे। जब तक द्रौपदी ने भगवान को ऊपर सरेंडर मतलब क्या? मेरे पास और कोई चारा नहीं है तुम्हारे सिवाय। Unless until you don't say that I have no other person who can help me other than you, till then God will not help you. Till then God will not help you. God will say, okay, I will take care of myself. If you think you can take care of yourself, if you think you can take care of yourself, God will say, be happy with yourself. I am not coming in and helping you. If you say, no, भगवान आपके सिवा मेरा और कोई चारा नहीं है। गजेंद्र, उसने भगवान को नहीं बुलाया, आजा मेरे को मदद कर। जो इन सब देवताओं से बड़ा है, जो सभी करता धरता है, वो आके उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। तब गजेंद्र का जब भगवान को प्रति उसने सरेंडर किया। दैट इज वाई गजेंद्र प्रेयर्स आर सेपरेट इन द भागवतम। जब आप लोगों को वक्त मिले पढ़ना कभी गजेंद्र प्रेयर्स, वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी इफेक्टिव। Even if you see it from the material point of view, it will give you relief from all material problems. Just read it. And very beautiful. And the meanings are also beautiful. The prayers is also very nice and very powerful. So what is Lord saying in that? Why, always, who is surrendered to me, I am always there for him. He should always, in all situations, he should have faith that I will protect him. I will take care of him. The minute you say, मेरे दिमाग से मैंने किया, that's over. Lord says, I am out of the picture, you are on your own. Baby, you take care of yourself. The minute you say, no, भगवान आप मुझे गाइड कीजिए, आपने मुझे बुद्धि दिया, आपने मुझे यहाँ लाके एक काम दिलाया या ये नौकरी दिलाई या ये करवाया, जब आप वो बोल रहे हो तब भगवान बोलेगा, yes, he is not taking the credit, he is giving the credit to me because I am the actual person who is to be given the credit. वो क्रेडिट और कोई क्रेडिट का हकदार नहीं, बाकी सब निमित्त बन सकते हैं। हकदार सिर्फ क्रेडिट कैन बी गिवन ओनली टू गॉड, रेस्ट मे बी इंस्ट्रूमेंट्स। Somebody may help you in your getting a job, somebody may help you in getting a, in getting cured from the disease, fine, those people are nimitta. I have always told this story, I'll tell again, very short. Once one person was not having money and he wanted to treat his wife, operate his wife, and he was dying for money. He didn't know what to do. रात को 11 बजे मंदिर के बाहर जाके बैठ गए, भगवान आप कृपा करें, कृपा करके मुझे हेल्प करें। उसी वक्त कहीं एक, उसी गांव में, मतलब उसी शहर में एक धनी व्यक्ति को नींद नहीं आ रहा। उसने बोला, ड्राइवर गाड़ी निकालो, मुझे नींद नहीं आ रहा है, आई लाइक टू गो फॉर अ स्ट्रोल। तो भी रात को 12 बजे तो गाड़ी लेके घूमा, ऐसे बाहर जा रहा था तो उसने देखा, अरे इस मंदिर में कौन बैठा है रात को 12 बजे। गया उधर, ड्राइवर को बोला गाड़ी रोक, गया उसके पास, बोला व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू सिटिंग इन द नाइट इन द टेंपल, द टेंपल इज गोइंग टू ओपन इन द मॉर्निंग। Said, see, I have come here to beg for help
I am in a very bad situation. My wife is going to get operated tomorrow and I don't have the money for the operation. What will I do? I don't know. The rich man said, oh, how much money do you want? He said, I wanted a couple of lakhs. The rich man had money. He just took his checkbook, gave him, signed and gave him the check. Keep this. The man was grateful, thankful to him. He said, thank you. The rich man started going. Immediately came back. He said, just keep this card. अगर पैसे और कम पड़े तो बोल देना, I'll give you more. This poor man said, thank you. I don't need your card because I know whom to contact when I am short of funds. What does this mean? मुझे पता है मुझे किसके पास जाके मांगना है. आप, क्योंकि एक व्यक्ति एक बार मदद करेगा, 2 बार मदद करेगा, और भगवान एक है जो अनगिनत मदद करते हैं. अनलिमिटेड हेल्प ही डस, अनलिमिटेड मर्सी ही डस. He could have said, give me your card, I'll call you up. But what did he say? I don't need your number. I know whom to contact if I need more. That is Vishwas. So, go triptena varana, ye mera sambhalenge. He is like a guardian. Whenever I am in trouble, he will help me. He will help, but there is a condition applied to that. Only when you are connected to him. कई लोग आते हैं मंदिर में. Only when the problem arises, they will come. आप पहचाने नहीं मुझे भगवान? पहचानेंगे कैसे? मैं कभी आया ही नहीं मंदिर. आज यार प्रॉब्लम में हूँ, आया हूँ, मदद कर दो मेरा. तो भगवान बोला, अच्छा आप कतार में चाहिए, आप जाके कतार में खड़े हो जाए, आपका नंबर आएगा. तो भगवान इज ऑल्सो नो, इफ यू आर टेढ़ा, ही 3 times टेढ़ा. And the minute a devotee is in a problem, he has to just continue his devotional service and beg to God, what is good you do for me. I am in this situation. What is good for me, you please do. Don't tell him how to do. Please don't advise God how to do. भगवान एक काम कर, मेरे वो है ना, ये फैक्ट्री में ना इतना माल का ऑर्डर करा दे, रॉ मटेरियल का भाव गिरा दे, ये करा दे, वो करा दे. नहीं, डोंट गाइड हिम. ही नोज बेटर मैनेजमेंट देन यू. You have to only say, please do what is right for me. What is ideal for my devotion. मेरा भक्ति छूटना नहीं चाहिए. My devotion should not break. Because I can afford to lose everything in this world. But once given a chance of doing devotion in this world, if one loses that, he is the most unfortunate person in this world. He is the most unfortunate person who is forced to give up devotion in this world. दुर्लभ, बहुत दुर्लभ चीज है ये भक्ति जीवन में आने के लिए. और वो आया हुआ भक्ति अगर कोई छोड़ता है या हाथ से छूट जाता है, उससे अभागा व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं. So go triptena varana. Always God is there to take care. तथा आत्म निक्षेप, fully surrendered. बस इसके आगे मुझे और कुछ नहीं करना है. भगवान की सेवा करना है, भगवान के दिए हुए मार्ग में मुझे चलना है. I want to go on the path given by God. I will do my devotional service, refrain from wrong things, do things which are ideal for devotion, and always have faith on God as if He is going to protect me, as if He is my father or my guardian. ये स्टेज पे आके एक बड़ा गड़बड़ होता है. क्या गड़बड़ हो सकता है? जैसे कई लोग हैं सरेंडर्ड, हाँ, नियमों का पालन करेंगे, सब करते हैं, बट अचानक एक स्टेज आता है जहां पे आदमी को घमंड आ जाता है कि मैंने शरणागति की. वो घमंड नहीं आना चाहिए. दैट इज वाई लॉर्ड इज सेइंग लास्ट वर्ड इज ह्यूमिलिटी. Karpanya means you have to be humble. You can never say,
I have now surrendered. I am now chanting. I am now left onion and garlic. मैंने दारू छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, सब छोड़ दिया. मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ. 16 माला भी जपता हूँ. मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ. सुबह उठ के पूजा पाठ करता हूँ. हाँ, किसी भी एक चीज का घमंड मत करना. ये जो आप कर रहे हो ना, बहुत निम्न कोटि का, बहुत लो क्वालिटी का है. जो हमारा जो 16 माला है ना, एक्चुअली अगर उसको छांट के देखें ना, भाई हम लोग को रोज 16 माला करना पड़ता है. क्यों? हमारे आचार्यगण कहते हैं 16 माला करो. गौड़ीय संप्रदाय में 64 माला करने बोलते हैं. वाई यू हैव टू टेक सो मेनी नेम्स? मुश्किल से कोई एक नाम अच्छे से मिला. हर नाम में किसी में कोई गड़बड़ रहता है. या तो मन लगा नहीं रहेगा, या तो उच्चारण सही नहीं रहेगा. तो कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं, आपका जितना भी नाम लिया होगा ना, वो पूरा एक गोनी बैग से खाली कर दें. और इतना बड़ा ढेर लगता है. जो 4 माला 6 माला करते हैं उनका ढेर नहीं लगता. उनका इतना सा, जो ज्यादा करते हैं उनका ऐसा ढेर लगता है. और उसमें से भगवान छाटते हैं. कोई एक भी अच्छा है क्या? एक माला, एक नाम भी सही है क्या फायदा? चाइनीज माल चाइनीज माल की तरह नाम लोगे, क्या फायदा? सो ऑलवेज रिमेंबर, one should be humble. One should never feel that I have done this much. What I have to do more is what you should be in your mind. और मुझे क्या? And last but not the least, it is only by chanting that you can cleanse or control your mind. First and foremost, one needs to cleanse his mind of all misgivings. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब कूट के भरे हैं अपने अंदर. कोई यहाँ माला करता रहेगा, हरे कृष्ण भगवान, आज 10 लाख का तो हो ही जाना चाहिए सौदा, 20 लाख का सौदा हो जाना चाहिए. हरे कृष्ण अवश्य रक्षति इति विश्वास. ये विश्वास गलत है. वहां पे ये मत बोलना, हाँ विश्वास है भगवान मेरा 10 लाख का आज बिजनेस करा देंगे, 20 लाख का बिजनेस करेंगे. प्लीज डोंट मिस इंटरप्रेट द शास्त्र. रक्षा तभी करेंगे जब आप भक्ति करोगे. और रक्षा, सबसे बड़ी रक्षा किस चीज से रक्षा करनी है आपको? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रोटेक्शन वन रिक्वायर्स? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रोटेक्शन वन रिक्वायर्स? नॉट गेटिंग बर्थ अगेन. उस चीज से अगर आपका रक्षा हो गया ना, तो आपका काम है. We are all 34%, 33% वाले स्टूडेंट्स. हमारे अंदर किसी के अंदर भी काबिलियत नहीं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. I say myself. I am also not fit for 35. And 35 is minimum passing marks. But that's the principle of study. So, what would you do if a student has tried his level best and got 34 marks? I don't know what is the present system. In our times, it used to be the teacher used to pity. बहुत बेचारे ने बहुत लिखा है, चलो इधर एक आधा मार्क देती हूँ, इधर एक आधा मार्क, इधर एक आधा मार्क. 33 का 35 करके. हमारा भक्ति भी ये 33-34 वाला क्वालिटी तक तो लाओ. 25 को कुछ नहीं कर सकते, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते. I had one nice classmate. He had come from native place. And he was son of one of the HODs. And poor fellow, he was come from a vernacular medium, and he was 0 in English medium. And that too, he was put directly in science stream. And we had inorganic, analytical chemistry, all papers. So every answer paper, he flunked in the very first year only. He flunked. I mean, he didn't cross basic. I mean, his tally was less than 10 or 12 marks total aggregate. Every answer paper he used to write. Analytical chemistry is that chemistry. Organic chemistry is that chemistry. Inorganic chemistry is that chemistry. And बाद में question mark. And never has answered. And the whole answer paper used to be white. And his other colleagues used to ask him, क्या दे हम लोग इसमें? And he used to be there. So I still remember. देने के लिए कुछ तो लिखा हो तो देना मार्क्स.
अगर कुछ भी नहीं लिखा तो मार्क्स क्या दें? उसी तरह है, अगर आप भक्ति कुछ भी नहीं करोगे तो भगवान आपको देंगे क्या मार्क्स? कुछ तो करो, कुछ तो तपस्या करो, एकादशी का व्रत पालन करो। अभी आ रही है मंगलवार को एकादशी आ रही है, कितने लोग एकादशी का पालन करेंगे मंगलवार को? जब बाकी लोग क्या क्या करेंगे? आप लोग एकादशी पालन नहीं करोगे? अरे बाबा प्लीज, उस दिन तो सिर्फ पाप खा रहे हो। अगर एकादशी के दिन आप खाते हो तो सिर्फ पाप खा रहे हो, कि अन्न में पाप रहता है। अरे इतना टन खाना घटक गए हम लोग सब, पेट भरा नहीं आज तक, मन तो कभी भरेगा भी नहीं। मन का तो यह हाल है। आई ऑलवेज टेल वन ऑफ माई रिलेटिव 92, 93 दांत सब गए। एंड आई टोल्ड दिस श्लोका yesterday only, this example in my yesterday class. Shankaracharya says, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशान विहितम जातम तुंडम वृद्धियोरांति गृहीत्वा दंडम तदापि न मुच्यन्ति आशा पिंडम। कहते हैं अंगम गलितम, अंग गल गया, बुढ़ापा आ गया, गंग गल गया मतलब चमड़ी लटक रही है, कितना भी बोटॉक्स कर लो एक हाथ के बाद बोटॉक्स भी काम नहीं करे। अंगम गलितम फलितम मुंडम, बाल झड़ गए, सफेद हो गए। दशान विहितम जातम तुंडम, दशान मतलब दांत, सारे दांत गिर गए। वृद्धियोरांति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापा आ गया, दंड ले लिया। तदापि न मुच्यन्ति आशा पिंडम, फिर भी आशा का जो डिजायर का जो लव है ना, होप एंड डिजायर, वो कभी नहीं जाता। तो मेरा एक रिलेटिव ओल्ड लेडी थी 92, 93, वो सब दांत गिर चुके थे, बट उसका डिजायर क्या था? चकली खाने की। दोज आर फेवरेट। शी यूज्ड टू गेट इट, मिक्सर में पीस के उसका पाउडर बना के करके हद। So please get out of this cycle of desire. मन को आप काबू में नहीं कर सकते हो जब तक आप अपने आप मन पे थोड़ा प्रेशर नहीं डालते। आप लोग आके मेरे को पूछते जी क्या करूं, मन इधर उधर भटकता है। मन आपका है, मेरा थोड़ी है। तो कंट्रोल कौन करेगा? बच्चा आपका है तो आप ही कंट्रोल करते हो ना। तो वैसे मन भी आपको ही कंट्रोल करना है। अगर आपका बच्चा मस्ती करेगा तो आप क्या करते हो? थोड़ा बोलते हो, डांटते हो, नहीं तो एंड में 2-4 टिश्यू टिश्यू। उसी तरह है, मन को भी पहले समझाओ, नहीं समझा थोड़ा डांटो, नहीं समझा चुप, अभी तू कुछ भी बोल मैं नहीं सुनूंगा, तेरा बात नहीं सुनूंगा। यू हैव टू बी दैट स्ट्रिक्ट। तो मन के साथ भी आपको उतना ही कठोर या स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा जैसे आप बाकी चीजों के साथ रहते हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड, humility is the most important and the final aspect one has to have after all developing all these qualities, 5 qualities. That is why total 6 steps दिए गए। What are the 6 steps? Let's last revision करें। कौन सा 6 steps है? And what is favorable you accept, what is not favorable you leave. Then as a protector and have the faith. First have the faith that God will protect. Then you should have is He is my guardian, He is my well-wisher. And last but not the least, after fully surrendering one should have humility. Humility means what? अरे प्रभु जी ने बोला मुझे प्रसाद का बाल्टी उठाने के लिए। मैं कितना बड़ा ऑफिसर हूं, मैं ऑफिस में कितना बड़ा पोस्ट रखता हूं, मैं कैसे उठाऊंगा? यू गो टू दिस langars, go to these Punjabi temples, big people, no, industrialists and all, they stand at the chappal counter and they, when you keep the slipper, no, they fold their hands and they take the slippers and they keep it. That's what is humility you have to develop. It doesn't come automatically, you have to bring it by force. In our life, nothing comes automatic. You have to get it by force. आपको जबरदस्ती लाना पड़ेगा। फर्स्ट डे यू विल फील ये तो मेरा प्यून का भी ऑफिस का मेरा प्यून का जैसा है और मैं इसके जूते को उठा रहा हूं।
But then that is how your mind gets cleansed. आपका मन उसी से साफ होता है, क्योंकि हमारे अंदर ईगो जो फैक्टर है ना वो इतना ज्यादा है, इसके लिए हमको भगवान के सामने भी हमारा ईगो ज्यादा है. We have got ego towards God also. And that is the reason why we are rotting in this material world. Acharya say, we were in the spiritual world, enjoying nicely, like Adam and Eve. And then हम लोग क्या किए? ने मजे ले रहे हैं, मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तू मजे ले रहे हैं. तो भगवान बोला, अच्छा तुझे मजा लेना है, जा धरती पे. और यहाँ पे आ गए हम लोग मजा लेने के लिए. स्ट्रेसफुल लाइफ जी के हम लोग क्या बोल रहे हैं? सैटरडे संडे मजा लेंगे. Monday to Friday, work like a donkey, run like a donkey, and then Saturday, Sunday, I'm going to enjoy life. What are you going to enjoy? Monday morning, वापस मरना है. Again got to die like a donkey. But then we are still happy with it. So please remember, all of you, one has to surrender, take the support of the holy name, and by which one can control the mind. And once he controls the mind, he is in a position of seeing God. Prabhupada even mentions one line very nicely. One who fully surrenders, he is in a situation वो जो भक्ति में आगे बढ़ जाता है, he can shake hands with God. It doesn't mean go and shake hands with God. Means you can see God directly. That's the most important crux of the whole thing. Okay, with this I'd like to close today's session. Anybody has got any doubts, questions, can ask.